Hello student, today I am going to discuss part 1 of chapter 5th, that is morphology of flowering plants. In this part 1 we will discuss about root system. First we will discuss morphology of flowering plants. Morphology is the branch of science which deals with the study of forms and structure. It generally means that study of external features, forms and relative position of different organs on plant. So first we are going to discuss that what is morphology. Morphology is simply study of external features of the plant. It means that what type of leaves are present in a plant, what type of flowers are present in a plant, what type of fruits and roots and branches are present in a plant. Simply हम ये कह सकते हैं कि प्लांट का जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं जो हम देख सकते हैं उन फीचर्स की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. अब प्लांट में जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो हैं लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, रूट्स, यानी ये सारी चीज़ें हमें प्लांट में बाहर से ही दिखाई देती हैं. नेक्स्ट इज़ पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. A typical flowering plant consists of two main parts. First is underground part, underground root system, and above ground shoot system. So in this figure you can see that this part is the root system, and the part which is present above the ground is the shoot system. So these are the two parts, one under the ground and it is the root system, and the part which is above the ground is the shoot system. Next is root system consists of main axis and its branches. Here you can see that this is the root system and it consists of main axis. This is the main axis and these are the branches. These are the branches of root. So a root system consists of main axis which is present in the center, and lateral branches comes out of this root system. Shoot system consists of a stem, a system of its branches, leaves, flowers and fruit. So the part which is present above the ground, जो ज़मीन के ऊपर होता है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं, और शूट सिस्टम में जो चीज़ें आती हैं वो हैं लीव्स, flowers, and these are the branches, stem and branches. So leaves, flowers, fruits, these are the fruits and branches and stem. All these parts they constitute a shoot system. In this plant, all these parts they are divided into two groups: vegetative part and reproductive part. The part which takes place in this plant, the root system, branches and leaves are known as vegetative part of the plant, and flower, fruits and seeds they constitute the reproductive part of the plant. तो इस प्लांट के अंदर जो रूट है, स्टेम है और लीव्स हैं, ये सब मिलकर वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं, और जो फ्लावर है ये फ्लावर है, और फ्रूट्स हैं, और फ्रूट्स के अंदर जो सीड प्रेजेंट होते हैं इनको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं. So first we will discuss about the root system. Root is typically a non-green underground descending portion of plant axis which gives rise to similar types of endogenous lateral branches and does not possess nodes and internodes. So roots क्या है? Roots एक अंडरग्राउंड डिसेंडिंग पोर्शन है प्लांट का, यानी प्लांट का वो पार्ट जो ज़मीन के नीचे जाता है
and it consists of a main axis and the lateral branches. So these are the lateral branches. These are the lateral branches, and they do not possess nodes and internodes. Nodes and internodes are the characteristics of stem. The place from where leaves originate is called nodes. Suppose there are two leaves, so these are nodes, and the space present between the node is the internodes. So nodes and internodes are not present in root, they are present only in stem. Now the general characteristics of root. Roots show no nodes and internodes. We just have discussed that these are the characteristics of stem. ये roots में nodes और internodes नहीं present होते हैं. They do not bear buds. रूट्स में बर्ड्स भी नहीं होती हैं, बर्ड्स भी स्टेम में ही पाई जाती हैं. दे आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिक. पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मीन्स दैट दे मूव, द रूट्स ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ एंड दे ऑलवेज मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट. क्योंकि ये लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक कहलाते हैं. और ये अर्थ की तरफ मूव करते हैं, इसलिए पॉजिटिव जियोट्रॉपिक इनको कहा जाता है. ब्रांचिंग इज एंडोजीनस. ब्रांचेस अराइज फ्रॉम पेरिसाइकिल. अभी आपको पेरिसाइकिल के बारे में नहीं मालूम है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसे हम और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. रूट्स आर अंडरग्राउंड एंड नॉन ग्रीन. रूट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट अंडर द सॉइल, and they are non-green means that do not have chlorophyll and they do not take part in photosynthesis. The root possesses root hairs which increases the absorptive surface area of the root for water absorption. As you can see that यहाँ पर ये एक मेन एक्सिस है रूट की, ये रूट की मेन एक्सिस है. इसमें से बहुत सारी लैटरल ब्रांचेस निकलती हैं. अब अगर मेन एक्सिस वाटर एब्जॉर्ब करे तो ये कम वाटर एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अगर इसमें इस तरह की ब्रांचेस भी हों और इन ब्रांचेस में भी सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो ये रूट्स ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है वो बढ़ गया है. तो रूट हेयर्स रूट का एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ रूट. फर्स्ट फंक्शन इज द एंकरेज. द रूट्स एंकर और फिक्स द प्लांट टू सॉइल और सबस्ट्रेटम. यानी प्लांट को सीधा खड़ा रखने में रूट्स मदद करते हैं, उसको एंकरेज प्रोवाइड करते हैं. Absorption, they absorb water and minerals and conduct them up to the stem and leaves. Roots water और minerals को absorb करते हैं और plant के different parts तक पहुंचाते हैं. Root tips synthesize plant growth regulators. There are so many hormones are produced. For example, auxin is produced at the tip of the root. They become modified to perform other functions like storage of food materials, respiration, assimilation, and additional support. So these are the functions of root. Next is the regions of roots. A typical root possesses the following 5 parts from apex upwards. First part is the root cap. It is a cap-like parenchymatous structure which protects the root apex. The cells of root cap also secrete mucilage which help the tender roots to penetrate the hard soil. So this part which is shown in yellow color, this region is the root cap. इसका काम यह है क्योंकि इसके बाद जो रूट की टिप होती है वो बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत मुलायम होती है, और रूट में जब ग्रोथ होती है तो वो सॉइल को पेनिट्रेट करके अंदर जाती है, जिसकी वजह से ये पार्ट डैमेज हो सकता है. तो इस
डेलिकेट और सॉफ्ट पार्ट को बचाने के लिए रूट की टिप पर एक पैरेन्काइमेटस टिश्यूज से बना हुआ एक कैप होता है जो थोड़ा हार्ड होता है और रूट को सॉइल में पेनिट्रेट करते वक्त ये उसके सॉफ्ट टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज मेरिस्मेटिक और ग्रोइंग रीजन ऑफ द रूट। Just above the root cap, you can see here this region. This region is the meristematic or growing region. Actually, it consists of meristematic tissues, and we know that meristematic tissues have capability to divide. They can divide and add new cells to the root. तो जो सेकेंड पार्ट है वो मेरिस्मेटिक रीजन है और इस मेरिस्मेटिक रीजन में मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर डिवाइडिंग कैपेबिलिटी होती है। जब ये डिवाइड होते हैं तो ये रूट टिप पर नए सेल्स ऐड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज द जोन ऑफ एलोंगेशन। This region just above the meristematic zone, this is the zone. Next region is the zone of elongation. The region of elongation lies just above the region of meristematic tissues, and the cells in this region undergo rapid elongation. तो इस रीजन में जो सेल्स होते हैं उसमें बहुत तेज़ी से elongation होता है और इस elongation की वजह से growth of the root इनलैंड टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं इसने कुछ नए सेल्स बनाए होंगे इस रीजन में इस रीजन में नए सेल्स बनाए होंगे और ये सेल्स अभी ये छोटे साइज के हैं क्योंकि कोई भी सेल जब डिवाइड होता है तो जो नए सेल्स बनते हैं दे आर ऑफ स्मॉल साइज। आफ्टर सम टाइम्स दे ग्रो इन साइज। ये सेल बड़े हो जाते हैं और जब ये सेल्स बड़े होते हैं तो यहाँ दो चीज़ें हो रही हैं, एक नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, दूसरा सेल साइज इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने की वजह से या सेल के साइज के इंक्रीज होने की वजह से रूट में एलोंगेशन होता है। तो ये जोन ऑफ एलोंगेशन है जिसकी वजह से रूट में ग्रोथ पाई जाती है। Next is zone of maturation. The part just above this region is the zone of maturation. You can see here that this is the uppermost part just below the soil. It's the zone of elongation. This is the region of maturation lies just above the region of elongation, and here the cells undergo differentiation and maturation into different types of tissues. The functions of this region is to provide mechanical support to the aerial part of the plant. So they provide mechanical support. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सेल्स हैं जब वो पुराने हो जाते हैं दे अंडरगो डिफ्रेंशिएशन और मैचुरेशन उसमें होता है। ये डिफ्रेंशिएशन और मैचुरेशन की वजह से ये जो रीजन है यहाँ ये बहुत हार्ड हो जाता है और ये जो हार्ड टिश्यूज़ हैं ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एंकरेज प्रोवाइड करते हैं और इन्हें सीधा इरेक्ट रखने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज द रूट हेयर जोन। Here you can see that some root hairs arise from the zone of maturation. So these are the root hairs which arise from the zone of maturation. यहाँ से ये रूट हेयर्स निकलते हैं और रूट हेयर्स का फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, प्लांट को सीधा इरेक्ट खड़ा रहने में भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज द रूट सिस्टम। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। फर्स्ट इज द टैप रूट सिस्टम। इट इन नियरली ऑल द डाइकॉट प्लांट्स।
So this is one of the characteristics of dicot plant, that they possess tap root system. It develops lateral branches of several orders. इसमें बहुत सारी lateral branches होती हैं, जो primary, secondary, tertiary, etc. All the branches of tap root system arise in acropetal succession. Acropetal succession का मतलब है कि जो youngest root hairs होंगी या lateral branches होंगी वो टिप की तरफ होंगी, और जो ओल्डेस्ट होंगी वो बेस की तरफ होंगी. द प्राइमरी रूट along with all the lateral branches form a system called tap root system. So here in this region is the radical. इस रीजन को हम रेडिकल कहते हैं. यहाँ से एक प्राइमरी रूट्स निकलती है जिसे हम मेन एक्सिस ऑफ द रूट्स भी कहते हैं. इस मेन एक्सिस, रूट के मेन एक्सिस से बहुत सारी लेटरल ब्रांचेज निकलती हैं. जो पहली लेटरल ब्रांच है इसको हम प्राइमरी कहेंगे. इसमें से जो दूसरी लेटरल ब्रांच निकलेगी प्राइमरी में से उसको सेकेंडरी कहेंगे. इस सेकेंडरी में से जो तीसरी लेटरल ब्रांच निकलेगी इसको टर्शरी कहेंगे. और इसी तरह से लेटरल ब्रांचेज निकलती जाती हैं. इसको हम, ये प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी हो गई, ये टर्शरी हो गई, फिर ये क्वार्टनरी हो गई. तो लेटरल ब्रांचेस, तो जो टैप रूट सिस्टम है वहाँ पर सिर्फ एक ब्रांच रेडिकल से निकलती है और बाकी ब्रांचेस उस प्राइमरी रूट से निकलती हैं. तो दिस वन इज़ द प्राइमरी रूट और द मेन एक्सिस. फ्रॉम दिस मेन एक्सिस सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी रूट्स अराइजेस. यहाँ से ये रूट्स निकलती हैं. तो इस तरह के रूट सिस्टम को हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं. नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट सिस्टम. When the radical is repeatedly branched and forms a tuft of root from the base of the stem, it is called the fibrous system. It is an important characteristics of cereal and grasses, or we can say that they are found in monocot plants. This is the characteristics of monocot plant. Here you can see again this region possesses radical. यहाँ पर radical present होता है और roots हमेशा radical से निकलती है. ये हम लोअर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि एम्ब्रियो के अंदर दो पार्ट होता है. एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं, एक प्लीम्यूल और दूसरा रेडिकल. प्लीम्यूल से शूट बनता है या स्टेम बनता है और रेडिकल से रूट बनता है. तो यहाँ पर भी ये रीजन रेडिकल है, यानी रेडिकल से रूट डेवलप होगा. अब यहाँ पर टैप रूट सिस्टम में हमने देखा था एक प्राइमरी रूट या मेन एक्सिस सिर्फ एक ब्रांच रेडिकल से निकलती है. यहाँ पर जितनी भी रूट्स हैं वो सारी की सारी रेडिकल से निकल रही हैं. यहाँ पर कोई मेन एक्सिस नहीं है. ऑल द ब्रांचेस अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द रेडिकल. नेक्स्ट इज adventitious root system. As we have discussed that root always develop from the radical, but there are some roots which arise from any part of the plant other than radical. They are called adventitious root. तो adventitious roots क्या होती हैं कि कोई भी रूट प्लांट के किसी भी पार्ट से निकले, रेडिकल को छोड़कर प्लांट के किसी भी पार्ट से. फॉर एग्जांपल उसकी ब्रांचेस से अगर रूट्स निकल रही हैं तो उन रूट्स को हम adventitious root कहेंगे. This may arise due to repeated branching of radical as in monocot and from the stem nodes, for example prop roots of zymase in many dicots. Here we can compare all the roots
Again, here you can see that this is the fibrous root. This one is the tap root, and these two are the adventitious root. In taproot, you can see that this is the radicle. From radicle, a primary root arises. This is the primary root. So only one root arises from the radicle. Other branches, lateral branches, they develop from the main axis. यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रांच है जो रेडिकल से निकल रही है, और बाकी ब्रांचेस उस मेन एक्सिस या प्राइमरी रूट से निकलती हैं. और ये प्राइमरी रूट से जो ब्रांचेस निकलती हैं, इनको हम, ये सेकेंडरी हो गई. सेकेंडरी से जो निकलेगी वो टर्शरी हो गई. टर्शरी से जो निकली वो क्वार्टनरी हो गई. एंड दिस वन इज़ द प्राइमरी ब्रांच ऑफ द टैप रूट. बट हेयर इन fibrous root, we can see that this region possesses radical, and here all the branches arise from radical. जितनी भी ब्रांचेज हैं वो सब डायरेक्टली रेडिकल से निकल रही हैं, जबकि टैप रूट में सिर्फ एक ब्रांच थी जो रेडिकल से निकल रही थी, बाकी ब्रांचेज उस प्राइमरी या रूट या मेन एक्सिस से निकलती थी. एडवेंटिशियस रूट एक डिफरेंट टाइप की रूट्स हैं. इन दोनों केसेस में जो रूट्स डेवलप हो रही हैं वो रेडिकल से हो रही हैं, जबकि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रूट डेवलप हो रही है वो रेडिकल से नहीं हो रही है, प्लांट के ब्रांच से हो रही है. जो इसकी ब्रांचेज हैं इस ट्री की, ये बनियान ट्रीज हैं. इसका एग्जाम्पल ये बनियान ट्री है और ये मेज है. तो इन दोनों केसेस में ये भी स्टेम है, स्टेम का नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है. और इन नोड से जो ब्रांचेस निकल रही हैं, जो रूट्स निकल रही हैं, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं. तो एडवेंटिशियस रूट्स की जो डेफिनेशन थी कि डेवलपमेंट ऑफ रूट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल. रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से अगर रूट्स डेवलप होंगी तो उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहेंगे. नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स. These tap roots, they are modified to perform different function. First function is storage. In some plants, the primary tap roots are modified for storing reserve food material. The secondary roots remain thin and they are absorptive in function. The storage roots are generally swollen and assume various forms. So first form is the conical root, and this root is called conical because इनका जो shape है वो cone shaped है. ये cone shaped root है, इसलिए इनको conical roots कहते हैं. Example इनका carrot is the example. ये इसका base है और ये इसका apex या tip है. और यहाँ से जैसे lateral branches होती हैं टैप रूट में, ये branches यहाँ से निकल रही हैं. तो conical roots एक तरह का modified root है which are modified to store food material. तो in this carrot food is stored, that's why they are swollen. थोड़ी सी ये फूली हुई हैं क्योंकि इसमें food store हो गया है. और इनको conical roots इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो shape है वो एक cone shape है. Next is fusiform. The root is swollen in the middle and narrow towards the both its base and apex, giving a shape of spindle radish. जो fusiform या spindle shape होता है वो कुछ इस तरह का होता है.
कि ये दोनों एंड पर पतले होते हैं और बीच में ये थोड़ा चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम फ्यूजीफॉर्म स्ट्रक्चर या स्पिंडल स्ट्रक्चर कहते हैं। इस रेडिश में भी आप देख सकते हैं कि ये इट इज़ थिन और नैरो एट बोथ द एंड। दिस वन इज द बेस एंड एपेक्स। बेस और एपेक्स दोनों जगह ये नैरो हैं एंड दे आर ब्रॉड और वाइड इन द सेंटर। तो ये फ्यूजीफॉर्म रूट है, इसका शेप फ्यूजीफॉर्म या स्पिंडल शेप ये होती हैं, इसलिए इनको फ्यूजीफॉर्म रूट्स कहा जाता है। दे स्टोर फूड मटेरियल एंड द एग्जाम्पल इज रेडिश। नेक्स्ट इज नेपिफॉर्म रूट्स। दे आर नियरली ग्लोबुलर or spherical in shape, and the example is turnip. Here you can see they are almost spherical in shape and the apex is very tapered. ये apex है जो बहुत ही पतला हो जाता है and the base is globular और spherical, यानी ये गोल होता है, almost ये गोल होता है और ये जो इसका एपेक्स है वो बहुत ही पतला होता है और इसका जो एग्जाम्पल है वो टर्निप है। नेक्स्ट इज ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट हैव नो डेफिनेट शेप। एग्जाम्पल इज मिराबिलिस जलापा और हिंदी में हम इसको शकरकंदी भी कहते हैं। इन ट्यूबरस रूट का कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता। जितनी भी रूट्स हैं दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, इनका अलग अलग शेप है, यही इनकी पहचान है। Here once again we can compare all these modified roots which are modified to store food material, and first one is the conical root. This one is the conical. This is fusiform. This one is napiform. And this one is tuberous. So all these are modified roots. They are modified to store food material. इनके अंदर food storage होता है, इसीलिए ये roots थोड़ी सी फूल गई हैं। ये कोनिकल है क्योंकि इसका शेप एक कोन शेप स्ट्रक्चर है, इसलिए कोनिकल कहा जाता है। ये फ्यूजीफॉर्म शेप है, इसलिए इनको फ्यूजीफॉर्म रूट्स कहते हैं। नेपिफॉर्म स्फेरिकल रूट्स हैं, ये बिल्कुल स्फेरिकल गोल होती हैं और इनका जो एपेक्स है वो बहुत पतला होता है। और ये ट्यूबरस है। ट्यूबरस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये इन रूट्स का जो शेप है वो बिल्कुल कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। सारे जो ट्यूबरस रूट्स हैं वो अलग अलग शेप की होती हैं। तो all these are the examples of modified roots for storage. Modification of roots to give additional mechanical support. So first one is the prop root. Actually these are the massive pillar-like outgrowth of the aerial branches which grow downward and becomes large and woody. On reaching the soil, they develop into column and support expanding canopy of the tree. Example is banyan trees. This is one of the example of adventitious root. और adventitious roots वो होती हैं जो रेडिकल के अलावा प्लांट या ट्री के किसी दूसरे पार्ट से डेवलप होती हैं। तो ये जो रूट्स हैं ये ब्रांचेस से डेवलप हो रही हैं। ये रूट्स ब्रांचेस से डेवलप हो रही हैं और कुछ टाइम के बाद इनका साइज इंक्रीज होता है और ये वुडी हो जाते हैं। एंड दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द लॉन्ग ब्रांचेज ऑफ द बनियान ट्रीज। बनियान ट्रीज की जो ब्रांचेज हैं वो कई मीटर तक लंबी होती हैं और
इन ब्रांचेस को सपोर्ट देने के लिए ये प्रॉप रूट्स होते हैं जो इन ब्रांचेस को सपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट इज स्टिल्ट रूट. These are the adventitious roots which arise in clusters from the basal nodes just above the ground. So these are the nodes. ये nodes हैं. This one is also node. Here again node. So जो बेसल नोड हैं, ऊपर की जो नोड्स हैं वहाँ से नहीं निकलता है. जो बेस जो सॉइल के करीब में नोड्स होती हैं वहाँ से ये कुछ रूट्स डेवलप होती हैं. और इन रूट्स का काम है प्लांट को एक्सटर्नल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना. तो दीज आर द स्टिल्ट रूट एंड और बनियान ट्रीज में जो रूट्स होती हैं उनको हम प्रॉप रूट्स कहते हैं. अगेन वी कैन सी हियर दैट दिस वन इज द banyan tree, and they possess prop roots. इसके अंदर जो रूट्स हैं वो प्रॉप रूट्स हैं. और ये मेज प्लांट है और इसके अंदर जो रूट है वो स्टिल्ट रूट होती हैं. दोनों ही एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल्स हैं और दोनों ही प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. प्रॉप रूट्स में जो रूट्स डेवलप होती हैं वो मेन ब्रांच से डेवलप होती है. ये आप देख सकते हैं कि ये मेन ब्रांच से ये रूट्स डेवलप हो रही हैं और बाद में ये बहुत थिक और वुडी हो जाते हैं. ये देख सकते हैं आप कितने ये मोटे और दे आर जस्ट लुकिंग लाइक ए ट्री, स्टेम ऑफ द ट्री. तो दे प्रोवाइड लॉन्ग ब्रांचेस ऑफ द बनियान ट्री. मेज में जो नोड्स हैं, जो बेसल नोड हैं, जो नीचे की तरफ होते हैं, इन नोड्स से जो रूट्स निकलती हैं ये नीचे जाकर सॉइल में पेनिट्रेट करती हैं. दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट.